चाहिए भाई कि जब अगर बैठे हैं तो उठने का नाम मत लो बस, या तो बैठो ही मत। तो आपने देखा बार टॉप के ऊपर मैं खड़े होके पार्टी कर रहा हूँ, मतलब आई एम वाइबिंग लाइक दिस प्रॉपर्ली एंड आई हैव अ बॉटल ऑफ एप्पल जूस। कुछ नहीं बोलो ना क्या आप सुनना है, बोलो मैं बताता हूँ तुमको, मसाला देता हूँ। कैंडी टॉक नाम है शो का। कैंडी टॉक विद विधि। क्यों क्या है जर्नलिज्म, खरीब जर्नलिज्म, वो स्टार्ट किराना शॉप। क्या सोचते हैं आप नागपुर के बारे में, ऐसा पूछ लिया। और किसने पूछा? जो आई सर्जन था। तो मैंने कहा सर, मतलब आप आंखों का इलाज तो करते हैं, आप नजरिया भी ठीक करते हैं क्या? तो ये वो सिंह भाई तो बहुत स्पॉन्टेनियस था, बोला सर ऐसे ही होता है। Hello everyone, I am Vidhi Jain, owner of Witzcraft. In Witzcraft, we design handmade photo albums and creative gifts for all occasions. In short, Witzcraft is all about customizing love. So let me give a brief about our today's guest. In a time where trust in media is declining all over the world, it has become even more important to support good and accurate journalism. Journalism, which is also defined as content, which is ethical, independent, critical, and of public interest. Up till now, you must have guessed our guest for today. The city boy who started a revolution of posting news updates on his Instagram stories, kept masses updated throughout the pandemic era with relevant, authentic, and credible news information. A person who has got the opportunity to be a part of Bigg Boss Curtain Raiser. Please welcome today one of the finest journalists, Vinay Pandey, also known as Journo Vinay Pandey. So Vinay. Thank you so much for an elaborate and such a sweet introduction that you've given. And I'm glad to be here and be a part of Witzcraft family. And I look forward for more such interviews, in coming time. Okay, so अभी हमको आपसे जानना है कि what is your daily routine as a journalist? And how do you manage your office detailing, like all the office deadlines with all the social news updates on Instagram? I've been doing journalism since it's been like 12 years now. So I know from where to extract news and from where to get the relevant information. So वो ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है. अभी मुश्किल का काम मेरे लिए ये है कि social obligations के deadlines कैसे meet करना. मतलब मुझे कहीं invitations आते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की expectations बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वहां जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है. ऑफिस का काम तो मैं आई डू इट वेरी क्विकली. सो द डे स्टार्ट्स, you get up and then you start scrolling the multiple news sources, channels. So जहां से आपको हमें पता रहता है कि कहाँ से न्यूज आ रही है, कहाँ से मिलने वाली है. सो हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं कौन सी रेलेवेंट न्यूज लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो न्यूज पे हम लोग काम करते हैं. और वो काम थ्रू आउट पूरा दिन भर का प्रोसेस है. इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड इट नेवर स्टॉप्स. न्यूज नेवर स्टॉप्स. So you have to be on your toes if you're a journalist, you have to be on your toes to get all the news updates and within time. Okay, if you're delayed by half an hour or 1 hour, then you are gone. Right. Someone else will take over your place, right? So वो सब हमारा काम रहता है. ये दिन भर का काम है, और उसके बीच में जितना टाइम मुझे मिलता है तो मैं लोगों से मिलता हूँ, इवेंट्स अटेंड करता हूँ, सोशल जैसे कोई पार्टीज हैं. अभी दिवाली का समय है तो काफी लोग पार्टीज रखते हैं, तो फिर वहां जाना पड़ता है. सो दिस इज हाउ माई डे यूजुअली गोज एंड इट इज क्वाइट वेरी हेक्टिक ऑल्सो. सो कैन यू टेल मी, एज अ चाइल्ड आपको हमेशा से जर्नलिस्ट बनना था या कभी इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा भी कोई प्लान था? इंजीनियर डॉक्टर तो मेरे लिस्ट में नहीं था, क्योंकि आई वॉज अ वेरी डल स्टूडेंट, टू बी वेरी प्रिसाइज. आई वॉज वेरी अ बैक बेंचर who was never interested in studies. I was more into sports. I was a cricketer. I played a good level of cricket, not district level, but then I've been all around my college premises, and giving trials and shit. So my day used to be only about cricket, watching, playing. So but then later on I realized that okay, this cannot continue for a long time, and I developed interest in journalism. जर्नलिज्म में भी कैसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होती थी. तो वो ज्यादा लोग देखते हैं, बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है कि मतलब वहाँ डिबेट होता है, एमपीज बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करते हैं. मैं बहुत देर तक वो देखते रहता था,
और वहां से मुझे पॉलिटिकल जर्नलिज्म में इंटरेस्ट आया. ओके. सो मैं अभी नेशनल एडिटोरियल में काम कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के, और वहां मैं नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही काम करता हूँ. Okay. सो ये दिस वाज नॉट अ चाइल्डहुड ड्रीम, इट डेवलप्ड विद एज. अच्छा. आफ्टर in the middle years of my graduation. So then I decided that yes, I want to be a journalist. ये सोशल मीडिया का कीड़ा कहाँ से आया? सोशल मीडिया का कीड़ा नहीं आया. मैं सोशल मीडिया और अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों बहुत अलग रखता था बिफोर 2020. फिर 2020 में क्या हुआ, न्यूज इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ा एकदम बैरिकेड आ गया. मतलब न्यूज लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि न्यूज़पेपर्स बंद थे. न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो कुछ भी न्यूज बता रहे थे, उसको क्रॉस चेक नहीं कर रहे थे, फैक्ट चेक नहीं कर रहे थे. और उसी के साथ साथ पैरेलल तरीके से फेक न्यूज का भी एक सिस्टम बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, जो लोगों को डरा रहा था, केओस क्रिएट कर रहा था, पैनिक क्रिएट कर रहा था. क्योंकि हमारे और आपके पूरे करियर में, पूरे लाइफ स्पैन में हमने पैंडेमिक नहीं देखा. ये 100-110 साल पहले हुआ था, और 110 साल के बाद हम लोग वी वर बॉर्न टू विटनेस दिस पैंडेमिक. सो लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो देन आई स्टार्टेड यूजिंग माई सोशल मीडिया, टू बी वेरी प्रिसाइज इंस्टाग्राम, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज स्टोरी स्पेस, टू गिव आउट रेलिवेंट न्यूज अपडेट्स. सो वो न्यूज अपडेट्स में बहुत नॉर्मली देता था, 1-2 लाइन में देता था, ताकि फॉर इंस्टेंस नागपुर में कितने कोविड पॉजिटिव आए, आपको टेस्ट कहां कराना चाहिए, आपको आइसोलेट कहां करना है, लोग बाहर से कितने लोग आए हैं, कहां आइसोलेशन सेंटर है, कितने. सो इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक, जो आपने स्टार्ट किया. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी कंज्यूमिंग एंड वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज कुछ चीजें आप इग्नोर कर सकते हो, जर्नलिस्ट चीजें इग्नोर नहीं कर सकता है. उसको सारी किस्म की न्यूज देना जरूरी है, और वो न्यूज देने के लिए उसे सारी न्यूज पढ़ना भी जरूरी है. अगर कहीं रेप होता है तो आपको बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, आप उसे अवॉइड कर देते हो, आप इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देते हो. We cannot deactivate our Instagram account. Why? Because we took the responsibility to inform people with credible, authentic and relevant information. So that is it. So ये सोशल मीडिया का कीड़ा जो मैंने खुद ही कटवाया, वो अब मुझे बहुत ज्यादा काट रहा है. Because it is very consuming also. You have to give time. It is not a 2-minute process. It's a very lengthy process. So बहुत overwhelming हो जाता है मेरे लिए कभी-कभी. 100%. Most of the times. बहुत सारे जर्नलिस्ट इंस्टाग्राम में आ रहे हैं जो आपके जैसे ही न्यूज इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो एज अ पब्लिक हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सी न्यूज रेलेवेंट है और कौन सी नहीं है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने? सबसे पहली तो बात ये है कि न्यूज रेलेवेंट है ये तो सेकेंडरी हो गया. बंदा कौन रेलेवेंट है ये देखना जरूरी है. कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे न्यूज तो लोग दे रहे हैं, पर उसमें ऑथेंटिक कौन है, कौन सही में जर्नलिस्ट है, कौन सही में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, और उस इंसान का कितने सालों का एक्सपीरियंस है. क्योंकि आजकल नौसिखिए भी इंस्टाग्राम की स्टोरी, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक व्हाट इज सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब वो एक भेड़चाल हो गई है. मतलब सबको एक ही दिशा में जाना है. अगर 5 लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो वो 50 भी उसको ही फॉलो कर लेंगे. ट्रेंड वाला क्लाउड चेजिंग, ट्रेंड सेटिंग, ये सब चल रहा है. अब कुछ जर्नलिस्ट ने उसको एक ट्रेंड सेट कर दिया कि न्यूज इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के स्टोरीज में हम डालेंगे. तो कुछ लोगों ने देखा कि अच्छा ये चल रहा है मार्केट में, ये सही चीज है, इससे हमें पब्लिसिटी मिल सकती है. सो उन्होंने भी वो ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया. पर यहाँ पे आप लोग जो व्यूअर्स हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो बंदा कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है क्या, उसके पास जर्नलिज्म की डिग्री है क्या, कि जस्ट वो क्लाउड चेजिंग कर रहा है. ये पता करना आप, क्योंकि एवरीवन हैज विजडम, राइट? एवरीवन they've got their own thinking process. तो अपने थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा इस्तेमाल करो, थोड़ा क्रॉस चेक करो. जैसे हम लोग क्रॉस चेक करके आपको न्यूज देते हैं, आप भी क्रॉस चेक करो कि कौन बंदा रेलेवेंट है, कौन सही में जर्नलिस्ट है, कि कौन सिर्फ पब्लिसिटी के लिए न्यूज अपडेट्स डाल रहा है. तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है. यस. तो ये सब करते करते जितना आप सोशल मीडिया में भी काफी रहते हैं, तो आपके साथ कभी कोई पापराजी मोमेंट हुआ है? एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट you would like to tell us? है इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स. मैं थोड़ा सा शाय हो जाता हूँ. मतलब मेरे साथ एक बार वाकया क्या हुआ था, देयर वाज अ फ्ली मार्केट, और मैं यहाँ की एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर के साथ वहां पे गया था. अब वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर का तो डेली का काम था, पहले से कंटेंट क्रिएशन में थे वो. सो एक लेडी आई एंड आई थॉट शी वांटेड टू टेक पिक्चर विद हर बिकॉज शी वाज अ नोन फिगर, राइट? एंड आई वाज लाइक समवेयर
aloof. So she gave the camera to the lifestyle blogger and she told her that please मेरी इनके साथ एक फोटो ले लें. So that was I was so awkward. मैंने उनको बोला कि प्लीज इनके सामने तो मत बोलो क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं. तो यहाँ से आने के बाद ये टांग खिंचाई करेंगे. तो ऐसी काफी मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं. But then it is normal, yeah. People like you, so they want to click photos with you. They want to keep memories, so it's good. I appreciate and respect their wants. part of story. Yes. Their side of things. Yeah. Their requests. Yeah, that's good. Yeah. Witzcraft as a brand, जो नागपुर में है, regarding the gifts and like what do you think? क्या scope है? Scope बहुत है because you know the entire demographic of gifting people on festive occasions and you know different occasions, be it weddings, be it anniversary, be it birthdays and festivals, Diwali to be very precise. So people are looking for different ways to gift people. So Witzcraft can come there in the picture. Okay, I've seen जितना मैंने देखा बहुत creative है आपकी चीजें. आप albums बनाते हैं, आप customize करते हैं, आप लोगों की memories को compile करके उन्हें देते हैं. So they have if they come to Witzcraft, they won't go disappointed. और मैं चाहता हूँ कि Witzcraft और expand करे and all you know more. They come up with more interesting and innovative ideas. Yes. So yeah, I'm very positive about the brand and you to be very precise. We are really trying hard like to achieve that we are innovative enough. हम ज़्यादा से ज़्यादा choices दे लोगों को ताकि लोगों के पास options रहे pick up करने के लिए. Definitely yes. So yes, we are trying our best to do that. Definitely, and you will. I'm very positive about that. Conviction के साथ कहते हैं. अच्छा, thank you so much. Means a lot to me. Thanks a lot. Yeah, most. Vinay, आप recently Delhi गए थे, and I saw a lot of fun stories on your Instagram. तो आपको क्या difference लगता है Delhi journalism में और नागपुर journalism में? दिल्ली जर्नलिज्म और नागपुर के जर्नलिज्म में जमीन आसमान का फर्क है. आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. यहाँ का जर्नलिज्म है, दिल्ली का जर्नलिज्म है, दिल्ली का जर्नलिज्म. दिल्ली में आप हैं तो आप यू आर इन द हार्ट ऑफ जर्नलिज्म. ओके, बातें चलती रहती हैं, मर्मर्स रहते हैं, इंफॉर्मेशन आते रहती है, लोग अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, तो आपको काफी सारी चीजें गैदर करने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, बहुत किस्म की बातें होती है, तो यू एनलाइटन योरसेल्फ एंड यू गेट इन्फॉर्मेटेड आल्सो. सबसे फन पार्ट मुझे लगा, आई वाज वॉन्डरिंग अराउंड कनॉट प्लेस और मेरे लिए बहुत ही न्यू था वो. तो वहां पे मैंने देखा कि एक जगह थी, स्पेसिफिक जगह थी, वहां पे बहुत सारे लोग एक कैमरा पकड़ के और माइक पकड़ के रैंडमली लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, रैंडमली. और वहां पे एक जर्नलिस्ट नहीं था, वैसे कम से कम 7 से 8 अलग अलग ग्रुप थे जो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे. और वो इतनी फनी हो गई बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई वाज इन द ऑडियंस एंड आई वाज वाचिंग देम एंड लाफिंग एंड माय फ्रेंड वाज देयर. आई लुक्ड एट हर एंड यू नो आई टोल्ड हर व्हाट इज दिस. सो दिस इज दिल्ली. ये चार्म है दिल्ली का. अलग अलग, क्योंकि देखिए जर्नलिज्म सिर्फ न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में नहीं होता. यूट्यूब में भी काफी मल्टीपल चैनल्स आ गए हैं जो न्यूज अपडेट्स दे रहे हैं और वो रैंडम, मतलब उन्हें मसाला चाहिए. तो मेरे सामने कौन सी बात हो रही थी, मेरे सामने जो एक लिंचिंग का हुआ था राजस्थान में उसकी बात हो रही थी. दूसरी बात हो रही थी आपका जो लाल सिंह चड्ढा के ऊपर, उसको बॉयकॉट ट्रेंड जो हो रहा है उसके ऊपर क्या आपका राय है. और वो उनसे राय ले रहे हैं जिन्होंने कभी मूवी थिएटर देखा ही नहीं. उनसे राय ले रहे थे. दे वर प्रेजेंटिंग इन अ वेरी फनी वे. सो इफ यू गो टू दिल्ली, सो वो दिल्ली का चार्म है, एसेंस है दिल्ली का. मतलब वहां पे छोटे जर्नलिस्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी बड़े, दे आर वेरी डल. So that is Delhi, and I liked the vibe of Delhi, the vibe of Connaught Place, how the place was buzzing with people, with shoppers, with musicians, and you know such journalists. So yes, it was a fun experience for me. So let's have a quick rapid fire winner. Ready? Yeah. एकदम ready. Ready. ठीक है. थोड़ा heads up दे दो यार. क्या पूछने वाले हो? ठीक है, पता